اہل سنت جملہ محافظین مسلک اعلیٰ حضرت خصوصیت کے ساتھ ناظم اجلاس نقیب جلسہ محترم حضرت علامہ مولانا انصاف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا میکائیل صاحب، حافظ کلام رحمان قاری خوش الحان حضرت حافظ قاری محمد شریف صاحب قبلہ، ناظم و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم رضویہ غریب نواز منوریہ بھوجا، دیگر ارباب منبر جملہ برادران اہل سنت اسلامی رشتے کی عزت دار پردہ نشین ماں بہنوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیا میں نے سب لوگوں سے سلام کیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ لوگ تو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں جیسے لاک ڈاؤن ہم نے لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا، والصلاة والسلام على سیدنا و سید الانبیاء محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق علی رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت مبارکباد کی قابل ہے یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا غلامان امام احمد رضا کا جلسہ جو ہے سیلاب، جسے ہم اور آپ سبھی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر جماعت اہل سنت کی ممتاز ترین علماء کرام و نائبین مصطفیٰ کی موجودگی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آل رسول، اولاد بطول، گلے گلزار قادریت، واحدی دولہا میری مراد، پیر طریقت رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ و مولانا شاہ سید سہیل میاں صاحب قبلہ واحدی دولہا تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت منبر نور پر تشریف فرما ہوں گے۔ ہم اب اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کی زیارت سے اپنے نیکیوں کی زنبیل باوزن کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اس جلسے کو خطاب فرمانے کے لیے دنیا سنیت کی عظیم ترین عبقری شخصیات جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی لیاقت صاحب قبلہ کے پیکر میں، ساتھ ہی ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت العلامہ شاہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ کے پیکر میں منبر نور پر تھوڑی دیر میں جلوگر ہونے والے ہیں۔ ان شخصیات کا خصوصی خطاب آپ سبھی حضرات سماعت فرمائیں گے۔ آپ نے اب تک کے جماعت اہل سنت کے ان نائبین مصطفیٰ مہمانان رسول اللہ سے نعت و منقبت کے حوالے سے ملاقات کی ہے۔ میں آپ کے دیار محبت میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا قیمتی وقت لے کر چند اہم اور ضروری باتیں لے کر حاضر ہوں۔ تھوڑی دیر تک میں آپ کا پیچھا کروں گا۔ ہمارے بعد جیسے ہی ہماری جماعت کے مقتدر خطبہ اسلام منبر نور پر تشریف لاتے ہیں، ہم اپنی جگہ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہندوستان کا بڑا ہی ابھرتا ہوا خوبصورت لہجہ جسے مداح حبیب داور جناب امیر حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج کے ٹائم میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کی آمد ہوگی۔ ان کا خوبصورت لہجہ، ان کا منظوم خراج عقیدت آپ سبھی حضرات سماعت فرما کر محظوظ ہوں گے۔ میں شروع ہوتا ہوں، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نیر اعظم نبی آدم و بنی آدم جان کائنات و روح کائنات تاجدار انبیاء سرور ہر دو سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دل نواز میں غلامانہ عاشقانہ جانثارانہ انداز میں سب لوگ یہاں سے وہاں تک، ادھر سے ادھر تک
ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, छोटे से बड़े तक सब लोग दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व क़रीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह तआला अलैहि वसल्लम अलैका या सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह। हजरात, मैंने सब लोगों से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। मजमे के चंद लोगों ने धीरे से भुनभुनाना शुरू किया, अल्लाहुम्मा ऐसे दुरूद मत पढ़िए। हम अहले सुन्नत वल जमात का यह ईमान व अकीदा है कि हम जिस नबी की महफिल में तशरीफ़ रखते हैं, जिस नबी के अंजुमन में हम आए हैं, हमारी निगाहें उस नबी को भले नहीं देख रही है, मगर वो नबी हमें ज़रूर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपका ये ईमान है, ये अकीदा है, तो दिल की गहराई से आप सिर्फ इतनी आवाज़ बुलंद करें, बहुत ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आवाज़ सिर्फ इतनी बुलंद करें कि आपके बगल वाला आपकी आवाज़ सुन सके। पूरा मजमा एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। अब आप बोल सकते हैं। हजरात, सबसे पहली गुजारिश आपसे मेरी यह है कि पूरी तवज्जो के साथ आप सिर्फ मेरी जानिब देखिए, ताकि हमारी तमाम तर बातें आपके समझ में आ सकें। अगर दाएं बाएं अगल बगल ज्यादा ताक झांक करेंगे तो हमारी बातें आप समझ नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है कि मेरा मिजाज है, मेरी आदत सी है, मेरी ये कोशिश होती है, मेरी सोच है कि मैं 1 घंटे के अंदर कम से कम 2 घंटे की तकरीर करके जाऊं। ये मेरा अपना इरादा रहता है, इसलिए कि ये कौम, ये मजमा बहुत कम मौक़ों पर हमें मिलता है, इतनी कसीर तादाद में, कि जिनके दरमियान हम अल्लाह और रसूल की बातें रख करके आपको कुछ मतलब की बातें बता सकें। हम उलमा आपको समझाना, पढ़ाना, बताना चाहते हैं, पर आप इकट्ठा नहीं होते, और जहाँ इकट्ठा होते वहाँ सुनने की कोशिश नहीं करते। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि जब तक के भी मैं आपके दरमियान हूँ, आप थोड़ा सा तवज्जो आप पूरी तरह हमारी तरफ दें। इंशाअल्लाह बहुत सी कीमती बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े, मैं शुरू हो जाऊँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि व दहुरी व कररमा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। आप बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा, कोई फीस नहीं लगेगी। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, सवाब मिलेगा। उलमा से आप फजीलत सुन चुके। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत अजीमुल बरकत हम और आप सबको एक ज़हन फिक्र दे रहे हैं। अर्ज करते हैं बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आदत के मुताबिक इसके हवाले से कुछ अहम और ज़रूरी बातें अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। आला हजरत सरकार हम और आप सबको ये पैगाम देते हैं, हम और आप सभी हजरात को एक कीमती बात फराहम फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अजमत, नबी के मकाम व मरातिब कितने बुलंद बाला है, इसे हम जमीन पर रहने वाले लोग नहीं समझ सकते। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। मिंबर शरीफ पर उलमाए किराम के नूरानी जमात मौजूद है। आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से, इधर हमारे
अजीज़ मौलाना अमीन रज़ा मिसबाही सल्लमहु तशरीफ रखते हैं। आपके गांव का बच्चा है, आपके गांव का बेटा है, लेकिन आज ये नाइबीन मुस्तफ़ा की जमात में मौजूद है। मिंबर शरीफ पर तमाम नाइबीन मुस्तफ़ा मौजूद है। इनके हवाले से आप एक जुमले का तर्जमा सुने। आला हजरत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत के उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत के उलू क्या जाने। अब एक एक हर्फ का मतलब समझें। फर्श का माना जमीन है, फर्श का माना जमीन है। फर्श वाले का मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग इस जमीन पर रहते हैं। आवाज खींच रहा है, आप बेस बंद कर दीजिए। आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। मतलब यह है कि ये जमीन पर रहने वाले लोग आपके मर्तबे की बुलंदी क्या जाने। एक एक जुमला आज सुने। फर्श वाले का मतलब है जमीन पर रहने वाले लोग। आला हजरत ने कितना मुतलक तौर पर जुमला कहा है। आला हजरत ने ये नहीं कहा हिंदुस्तान वाले क्या जाने। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया नेपाल वाले क्या जाने। आला हजरत ने ये नहीं फरमाया जापान वाले क्या जाने, चीन वाले क्या जाने, इंग्लिस्तान वाले क्या जाने, अरब वाले क्या जाने, अजम वाले क्या जाने, एशिया वाले क्या जाने, यूरोप वाले क्या जाने, अफ्रीका वाले क्या जाने। आला हजरत ने कोई कैदोबंद नहीं लगाई। आला हजरत मुतलक फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले का मतलब है पूरी रूए जमीन पर जितने लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के रहने वाले हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हो, चाहे वो अफ्रीका में रहने वाले हो, चाहे वो इंग्लैंड में रहने वाले हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हो, पूरी रूए जमीन पर ऑल वर्ल्ड लेवल की बात आला हजरत करते हैं कि पूरी रूए जमीन पर रहने वाले लोग आपके मर्तबे की बुलंदी क्या जाने। तेरी से मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात है। शौकत का माना मर्तबा है, उलू के माने बुलंदी है। अब पूरी लाइन का माना हो गया कि या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, जमीन पर रहने वाले लोग आपके मर्तबे की बुलंदी क्या जाने। या रसूल अल्लाह, आपका मकाम कितना ऊंचा है, ये जमीन पर रहने वाले क्या जाने। आपकी शान कितनी बुलंद है, जमीन पर रहने वाले क्या जाने। आपका रुतबा कितना बुलंद तरीन है, ये जमीन पर रहने वाले क्या जाने। या रसूल अल्लाह, हकीकत तो ये है कि खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। इसका मतलब ये है अर्श आजम की बुलंदी पर नबी की बादशाहत का झंडा लहरा रहा है। नबी की आजमत का झंडा सिर्फ रूए जमीन पर नहीं, सिर्फ मक्का की गलियों में नहीं, मदीना की आबादियों में नहीं, सिर्फ अरब की सरजमीन पर नहीं, मुस्तफा जान रहमत के अज़्म तक़द्दुस मकाम मर्तबे का झंडा अर्श आज़म की बुलंदी पर लहराता है। वो अर्श आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा राहत रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, रसूल के हवाले से मिंबर शरीफ पर उलमा बैठे हैं। इनसे अगर आप सवाल करें, ये आपको अपने इल्म के मुताबिक समझाने की कोशिश करेंगे। नाइबीन मुस्तफ़ा मौजूद है, अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर अज़मत रसूल का दर्स आपको देते नजर आएंगे। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नबी की अज़मत जानने के लिए आप अपनी जमात से तो पूछ ही सकते हैं, मगर हिज़्ब मुखालिफ से आप पूछें। आप मुखालिफ जमात को सामने खड़ा करके पूछें, किसी वहाबी देवबंदी से पूछें कि नबी की शान कितनी बुलंद है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग कभी ये बयान करते हैं कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। सब लोग एक बार कह दो माज़ अल्लाह, अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। घोड़े गधे खच्चर बीवी बच्चों का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती है। ये वहाबिया देवबंदिया के अकायद है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तरह मुखालिफीन की जमात से आप सवाल करें कि नबी की शान क्या है, तो ये जालिम बयान करते हैं कि नबी अपने हाथों से घर का काम काज करते थे। ये जालिम बयान करते हैं नबी अपने हाथों से अपने कपड़े सिला करते थे, नबी अपने हाथों से अपने कपड़े धोया करते थे, नबी अपने हाथों से घर के तमामी काम अंजाम दिया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सारी बातें बयान करके नबी की शान अज़मत को बुलंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये अपने तौर पर नबी की शान अज़मत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हकीकत ये है, रब्बे काबा जिसे बुलंद फरमा देता है उसे पूरी दुनिया मिलकर के गिरा नहीं सकती। कर देता है खुदा, जिसे गिरा देता है पूरी
दुनिया मिलकर उसे बुलंद नहीं कर पाती है। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अब जहन को हाजिर रखिएगा, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ अपने गांव के एक ऐसे आदमी को आप पकड़ करके लाइए जो आदमी बिल्कुल अनपढ़ है, मेरा जाहिल है, एकदम ला इल्म है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, कभी पढ़ने लिखने के गरज से मदरसे और स्कूल का रास्ता भी उसने नहीं देखा है, मदरसे तक उसने कभी हाजिरी नहीं दिया, इल्म हासिल करने के गरज से उलमा के करीब कभी बैठता भी नहीं है, बस कभी कभार जुमा की नमाज पढ़ने चला जाता है। कभी इस किस्म के बड़े बड़े जलसे होते हैं, उन जलसों में जाकर उलमा के खिताब सुन लेता है। आप अपने गांव के उस जाहिल सफद इंसान को बुलाइए, बुलाने के बाद उससे हम सवाल करते हैं, ए भाई आज हम तेरी बस्ती में, तेरे गांव में, तेरी आबादी में जिक्र नबी करने आए हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पैगामात को आम और नशर करने की गरज से आए हैं, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो इंसान बड़ संजीदगी के साथ जवाब देता है, हजरत पूछिए आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। मैंने उससे कहा, ए भाई आप ये बताइए आप पढ़े लिखे हैं? उसने कहा, हजरत हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। तवज्जो आप मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ रखिएगा। मैंने कहा, ए मेरे भाई आप जरा ये बताइए नबी की शान कितनी बुलंद है? आप तवज्जो हमारी तरफ मरकूज रखा है। ए भाई आप बताइए मुस्तफ़ा का मकाम कितना ऊंचा है, हमारे नबी की शान कितनी बुलंद है, मेरे नबी का रुतबा कितना बुलंद है? तो उस आदमी ने हाथ जोड़ कर कहा, हजरत हम पढ़े लिखे नहीं है, हजरत हमें इल्म नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम जाहिल तबके से ताल्लुक रखते हैं, हम बिल्कुल एकदम अंगूठा टेक है, एकदम निरा जाहिल है, हमें इल्म के मामले में कोई जानकारी नहीं है। हमने कहा, ए भाई अगर फिर भी तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कभी कभी तुमने उलमा के हवाले से सुना होगा, उलमा के बयान सुना होगा, उलमा की तकरीरें सुनी होगी, खुतबा का खिताब सुना होगा, मस्जिद में जुमा में नमाज पढ़ने गए होगे, वहाँ पर इमाम साहब ने खिताब किया होगा, वहाँ से कभी तुमने अज़मत रसूल का कोई ना कोई पैगाम जरूर सुना होगा। उस आदमी ने कहा, हाँ हजरत हम पढ़े लिखे तो नहीं है, हम पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखते नहीं, हम स्कूल कभी पढ़ने गए नहीं, मदरसे में मैंने कभी नाम लिखाया नहीं, लेकिन हमने उलमा की तकरीरों से नबी के हवाले से इतना जाना है कि मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है, नबी की शान इतनी बुलंद है, नबी की शान इतनी बुलंद है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। हमने उलमा के हवाले से ये जाना है मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है कि मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया तो चांद ने अपना सीना चीर दिया था। हमने उलमा के हवाले से सिर्फ इतना जाना है मेरे नबी की शान इतनी बुलंद है कि मुस्तफ़ा करीम पैगंबर की बारगाह में जंगल के जानवर निकल कर नबी को सलामी करने आते थे। मेरे आका जिस रास्ते से गुजरते हैं, पहाड़ों से गुजरते हैं, नबी जब सहराओं से गुजरते हैं, पहाड़ की चोटियों पर रखे हुए पत्थर नबी को सलाम करते हैं। हमने इतना जाना है मेरे रसूल जिस रास्ते से गुजर फरमाते हैं तो पेड़ की डालियां झुक झुक कर नबी को सलाम करती है। हमने उलमा के हवाले से अज़मत नबी ऐसे जाना है कि मेरे सरकार जब रेतीली जमीन पे कदम रखते थे तो निशाने कदम नहीं बनते हैं, मगर मेरे रसूल ने जब पत्थर पे कदम रखा तो निशाने कदम बन गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, वो जश्न शान मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप इको कम कर दिए, बिल्कुल आवाज साथ ही साफ चलाइए, इको कम कर दिए। अजीज़ान मोहतरम हमारे नबी की शान कितनी बुलंद है। एक जाहिल इंसान बोल रहा आपकी बस्ती का, हमारी आबादी का, जो बिल्कुल इंसान पढ़ा लिखा नहीं है। हमने उलमा के हवाले से जाना कि रसूल कायनात का इख्तिदार और इख्तियार सिर्फ ज़मीन तक का महदूद नहीं है। नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद गर्दिश करता नजर आया, चांद घूमता नजर आया। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत जानने वालों, अगर अज़मत रसूल जानना है तो आप कुरान मुक़द्दसा की तिलावत शुरू करो। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। आप जश्न इमाम अहमद रजा में आए हुए हैं और जश्न दस्तार बंदी भी साथ साथ है। अभी कुछ देर के बाद दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमाएंगे। हुजूर सैयद साहब तिबला दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया और इन उलमाए किराम के हाथों से उन बच्चों के सरों पर दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान सजाकर उन्हें नबी की नियाबत के सौगात से माला माल किया जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस मजमे में
वो बाप भी बैठे हैं जिनकी औलादों के सरों पर ताजे हिफ्जुल कुरान सजा कर उन्हें दूल्हा बनाया जाएगा। इस महफिल में हमारी वो इस्लामी बहनें भी बैठी हैं जिन बहनों के गोद में पल करके बच्चे ने चलना सीखा, जिस माँ ने अपने लाल को अभी अब्बा अम्मा कहना सिखाया है, उसी माँ का नूरे नजर कभी हाफिज कुरान बनकर अभी जब मिंबर पर आएगा तो उस माँ के दिल से पूछो, उसकी खुशियों की इंतहा नहीं रहेगी। अजीज़ान मोहतरम, अगर अज़मत रसूल जानना है तो फिर आप कुरान की बारगाह में आए। नबी का चलना क्या है वो कुरान बयान करता है, नबी का बोलना क्या है वो कुरान बयान करता है, नबी का चेहरा क्या है कुरान बयान करता है, नबी की सीरत क्या है वो कुरान बयान करता है, नबी का हाथ क्या है वो कुरान बयान करता है, नबी की पेशानी क्या है वो कुरान बयान करता है। अगर अज़मत मुस्तफ़ा जानना है तो कुरान तुम्हें पढ़ना होगा, कुरान पढ़ाना होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सिर्फ कुरान को रस्मी तौर पर, फॉर्मेलिटी तौर पर आपको सिर्फ जो है यूं ही दिखावे के लिए सिर्फ जो है रस्मी तौर पर कुरान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाते हैं, आप खुद भी कुरान पढ़ते हैं, लेकिन आप ये बताइए, अगर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा तो उसका मतलब भी समझते हैं, अर्रहमानिर रहीम पढ़ा तो उसका मतलब भी समझते हैं या नहीं, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ा उसका मतलब भी समझते हैं या नहीं। अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस तरह रट लेने से कोई मकसद हल नहीं होना है। अज़मत मुस्तफ़ा आप जब ही जान पाएंगे जब कुरान पढ़ते भी जाए, कुरान समझते भी जाए, और ये तभी होगा जब आपका इल्म मजबूत होगा। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। मेरे भाई कुरान पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत पैदा कीजिए कि हमारा बेटा कुरान पढ़ता भी जाए, कुरान समझता भी जाए। तब आपको अज़मत नबी का एहसास होगा कि मेरे नबी की शान कितनी बुलंद है। अगर अज़मत रसूल के हवाले से मैं गुफ्तगू करता रहूँ तो काफ़ी वक्त आपका लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा आपका वक्त इस तरफ में खर्च ना करके मैं बड़ी तेज़ी के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैंने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत पाक पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक बार मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोल दे सुभान अल्लाह, जो मेरे भाई खड़े हैं आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर तमाम उलमाए सुन्नत तशरीफ रखते हैं, मुफ्तियाने किराम भी तशरीफ लाने वाले हैं। इन तमाम बुजुर्ग बारगाहों में हाजिर होकर आप इनसे कहिए, हजरत अलिफ लाम मीम ये आयत पाक राहत ने तिलावत की है, इसका तर्जमा राहत ने बयान नहीं किया है, आप बयान कर दीजिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जितने भी उलमा मौजूद हैं या जो यहाँ मौजूद नहीं है, आज तक के किसी भी आलिम दीन ने, किसी भी मुतरज्जिम ने इसका तर्जमा किया ही नहीं। न अलिफ का तर्जमा किया है, न लाम का तर्जमा किया है, न मीम का तर्जमा किया है। हजरात, ये तो हम लोग सुनकर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले उलमाए किराम का मामला है कि अलिफ लाम मीम का तर्जमा आज तक के किसी ने किया ही नहीं, और करेगा कैसे? हम और आप दुनिया में कोई भी अलिफ लाम मीम का तर्जमा जानते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है उसे आप जरा सुनिए। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 6666 आयतें नाजिल फरमाई है। पूरे कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666 आयत है। जिनको याद ना हो आप याद कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें तो ये बात याद है, लेकिन बहुत से मेरे अनपढ़ भाई ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं याद कि कुरान में पूरी आयतें कितनी है। पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। उन आयतों की 3 किस्में हैं, एक आयत मुक़त्तआत है, एक आयत मुतशाबिहात है, एक आयत मुहकमात है। ये मिंबर शरीफ पर बैठे उलमाए किराम इसे बखूबी समझते हैं। आयत मुक़त्तआत किसे कहते हैं? जिसका मतलब वाज़े नहीं है, जो रब की मंशा है वो वाज़े भी नहीं है, उसका कोई तर्जमा भी जाहिर नहीं है। हम जब किसी बात का कोई मतलब समझते ही सकते तो उससे अकीदा नहीं बना सकते। गोया कि हम और आपको ये पैगाम ज़हन दिया गया कि आयत मोहब्बत मुक़त्तआत से अकीदा नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए कि उसका मतलब वाज़े नहीं है। जैसे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम ऐन सीन काफ, तासीन यासीन ताहा, काफ हा या ऐन साल, इस तरह की जो आयतें हैं इन्हें आयत मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका तर्जमा हम तो हम हैं, आप तो आप हैं, आलिम साहब तो आलिम साहब है, मुफ्ती साहब तो मुफ्ती साहब है, मुजद्दिस साहब तो मुजद्दिस साहब है, मुहद्दिस साहब मुहद्दिस साहब है। जो कुरान अज़ीम की आयतों को लेकर आने वाला मुक़द्दस फरिश्ता बशक्ल जिब्रील था। हज़रत जिब्रील को मालूम नहीं था अलिफ का मतलब क्या है, जिब्रील को मालूम नहीं था कि लाम का मतलब क्या है, जिब्रील को मालूम नहीं था कि मीम का मतलब क्या है। आप ऐसे समझे, हज़रत जिब्रील अमीर बारगाह मुस्तफ़ा में तशरीफ लाए, अर्ज़
کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کا سلام لایا ہوں. اللہ کے حبیب نے سلام قبول فرمایا. حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ الف، سرکار خاموش رہے. جبریل نے کہا لام، سرکار خاموش رہے. جبریل نے کہا میم، سرکار خاموش رہے. پھر جبریل نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے کہا الف، جبریل نے کہا الف، سرکار نے فرمایا فہم تو. جبریل نے کہا لام، سرکار نے فرمایا فہم تو. جبریل نے کہا میم، سرکار نے فرمایا فہم تو. جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے آقا خاموش ہو گئے. اسی آیت پاک کو میں نے عنوان سخن بنایا. توجہ دیجئے گا، غور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جبریل نے کہا الف، سرکار نے فرمایا فہم تو. یہ عربی جملہ ہے، اس کا معنی ہوا میں سمجھ گیا. ممبر شریف پر علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. جبریل نے کہا الف، سرکار نے فرمایا فہم تو، یعنی کہ میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، سرکار نے فرمایا فہم تو، یعنی کہ میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم، سرکار نے فرمایا فہم تو، یعنی کہ میں سمجھ گیا. اب اس کے بعد جبریل نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میرے آقا خاموش ہو گئے. نبی چپ چاپ ہے. نبی نے فہم تو کا جواب نہ دیا. نبی نے میں سمجھ گیا کا جواب نہ دیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب خاموش ہوئے، نبی نے سکوت اختیار فرمایا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. آقا فرماتے ہیں بولو. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نے الف کہا، آپ نے فرمایا فہم تو. میں نے لام کہا، آپ نے فرمایا فہم تو. میں نے میم پڑھا، آپ نے فرمایا فہم تو. مگر یا رسول اللہ الف کا مطلب میں نہ سمجھ سکا، لام کا مطلب میں نہ سمجھ سکا، میم کا مطلب میں نہ سمجھ سکا. یا رسول اللہ جب میں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھا تو آپ خاموش رہے. آپ کچھ جواب نہیں دیے. آپ نے جواب نہیں عنایت فرمایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سمجھ گیا. اس معمے کو میں سمجھ نہ سکا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبریل الف کا جواب میں نے دیا ہے، لام کا جواب میں نے دیا ہے، میم کا جواب میں نے دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جواب میں نے نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی فرماتے ہیں کہ اے جبریل ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب سمجھتا ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی وضاحت کیا ہے یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جبریل الف کا مطلب سمجھتے ہو؟ جبریل نے کہا نہیں. لام کا مطلب سمجھتے ہو؟ جبریل نے کہا نہیں. میم کا مطلب سمجھتے ہو؟ جبریل نے کہا نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبریل اگر میں لام کے الف کے بعد الف کے جواب میں فہم تو نہ کہتا، لام کے جواب میں فہم تو نہ کہتا، میم کے جواب میں فہم تو نہ کہتا، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد بھی میں یہی جواب دیتا تو ان دونوں آیات کو ایک جیسا آپ تصور کرتے. جبریل معاملہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا جواب میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس کا مطلب تم سمجھتے ہو. جبریل الف کا جواب میں نے اس لیے دیا، لام کا جواب میں نے اس لیے دیا، لام کا جواب میں نے اس لیے دیا، میم کا جواب میں نے اس لیے دیا کہ تم الف لام میم کا مطلب نہیں سمجھتے ہو. جبریل تو میرے نبی فرماتے ہیں جبریل میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل دیکھ لو جو تم سمجھتے ہو میں اسے بھی سمجھتا ہوں، جو تم نہیں سمجھتے ہو میں اسے بھی سمجھتا ہوں، میں اسے بھی سمجھتا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن امام احمد رضا کانفرنس مسلک اعلی حضرت و جشن دستار حفظ القرآن حضرت علامہ راحت رضا برکاتی. نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں جبریل جس آیت کا مطلب تم سمجھتے ہو میں اس کا مطلب بھی سمجھتا ہوں، اور جس کا مطلب تم نہیں جانتے ہو میں اس کا مطلب بھی سمجھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شان ہے تو قرآن پڑھتے جاؤ عظمت نبی معلوم ہوتی جائے گی. عزیزان محترم ذرا رکیے گا. اللہ رب العزت نے پوری کائنات سے پہلے، زمین و آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج بنانے سے پہلے، شرق و غرب شمال و جنوب، چنین و چنا مکین و مکا، پوری کائنات کو وجود عطا فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور خاص سے ہمارے آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک پیدا فرمایا تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی چیز نہیں بنی تھی اس وقت اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا. سرکار مدینہ علیہ السلام کے امتیوں نبی کے دیوانوں آپ ذرا غور کریں. خدا نے کائنات بنانے سے پہلے نبی کو پیدا فرما دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زمین نہیں بنی تو مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا، آسمان نہیں بنا تھا رب نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، چاند و سورج نہیں بنے تھے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا، تو پھر رکھا کہاں
اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے زمین و آسمان دنیا کی کوئی چیز بنائی ہی نہیں تھی، دنیا بھی نہیں بنائی تھی، اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرما کر اپنی قرب خاص میں رکھا تھا، اپنی بارگاہ خاص میں رکھا، اپنی بارگاہ مقدسہ میں رکھا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، خدائے وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں رکھا اور رکھنے کے بعد میں تمام علم ما کان و ما کون عطا فرما دیا۔ خداوند قدوس نے قیامت تک کی تمام تر چیزوں کا علم نبی کو عطا فرما دیا۔ قیامت کے بعد بھی کیا کیا ہونے والا ہے یہ سارا علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی وضاحت قرآن فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ رب کعبہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، سب کچھ سکھا دیا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ عزیزان محترم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت پاک سے عظمت نبی اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت جبریل ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب سمجھتے ہیں۔ حضرت جبریل جس آیت کا مطلب جانتے ہیں نبی اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں، اور جس آیت کا مطلب جبریل نہیں جانتے مصطفیٰ اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں۔ اب ذرا رکیے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتوں کی 3 قسمیں ہیں، ان میں پہلی قسم آیات مقطعات کی ہے۔ آیات مقطعات الف لام میم، الف لام را تا ہا تا سین یاسین، اس قسم کی جتنی آیتیں ہیں ان سب کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان سے عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ جو عقیدہ بنایا جا رہا، عقیدہ بنانے کے لیے ان آیات کا کوئی مطلب و خلاصہ واضح نہیں ہے۔ اب آگے چلیے، دوسری قسم ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے وہ آیت سے ظاہر نہیں ہے، اور جو آیت سے ظاہر ہے وہ رب کی منشا نہیں ہے۔ تو جو آیت اس طرح کی ہو کہ ظہور کچھ ہو، وضاحت کچھ ہو، رب کی منشا کچھ ہو، جو اللہ کی مرضی ہو وہ آیت سے ظاہر نہیں، اور جو آیت سے ظاہر وہ رب کی منشا نہیں، تو اس آیت کا بھی عقیدہ آپ نہیں بنا سکتے۔ آیات متشابہات میں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، جیسی آیت شامل ہے۔ اب تیسری قسم جو آیات محکمات ہے، آیات محکمات سے ہی عقیدہ بنایا جا سکتا ہے، آیات محکمات سے ہی عقیدہ عمل میں آتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خداوند قدوس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک لاکھوں نبی دنیا میں بھیجے ہیں۔ کسی نبی کو ایک معجزہ دیا ہے، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3-4 معجزے عطا فرمائے ہیں، کسی کو خدا نے ایک متعین مدت کے لیے معجزہ عطا کیا ہے، کسی کو محدود وقت کے لیے معجزہ عطا فرمایا ہے۔ مگر ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا چلنا معجزہ ہے، نبی کا بیٹھنا معجزہ ہے، نبی کا بولنا معجزہ ہے، نبی کا سفر میں جانا معجزہ ہے، نبی کا لیٹنا معجزہ ہے، نبی کا کھانا معجزہ ہے، نبی کا پانی پینا معجزہ ہے، نبی کا تجارت کرنا معجزہ ہے، نبی کا شادی کرنا معجزہ ہے، نبی کی خلوت معجزہ ہے، نبی کی جلوت معجزہ ہے، نبی کا سراپا معجزہ ہے۔ میرے آقا میرے رب نے حضرت آدم سے عیسیٰ تک کے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا تھا، مگر رب کعبہ نے ہمارے نبی کو معجزہ دے کر نہیں، معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن امام احمد رضا کانفرنس و جشن دستار بندی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات میرے رب نے ہمارے آقا کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو جہاں شق القمر کا معجزہ عطا فرمایا ہے، سورج کی واپسی کا معجزہ عطا فرمایا، انگلیوں کی گھائیوں سے چشمے جاری فرمانے کا معجزہ عطا فرمایا، وہیں رب کعبہ نے کیسا معجزہ عطا فرما دیا جو رہتی دنیا تک کے لیے، پوری دنیا کے اس لیے اظہر من الشمس ہے۔ اسی معجزے، اسی اعجاز رسول کو تو قرآن کہا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن کریم اللہ کی ایک ایسی مقدس و بابرکت کتاب ہے جس کتاب کی مثل دنیا میں آج تک کے نہ تو کوئی کتاب آئی ہے نہ تو صبح قیامت تک آ سکتی ہے۔ قرآن سے پہلے بھی اور دوسری کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے، ان میں توریت و زبور و انجیل ہے، اس کے علاوہ دیگر صحیفے ہیں جو تمام مختلف انبیاء کرام پر نازل ہوئے، مگر وہ ساری کتابیں توریت و زبور انجیل ہی کو لے لیا جائے۔ ان کتابوں کو دنیا میں بھیجا اللہ نے اتارا، لیکن اس کے عالموں نے جو ہے
है उनमें बहुत कुछ तहरीफ कर दिया, बदल दिया, लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है, कुरान करीम के खिलाफ भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ हाथ पैर मारा, कुरान के बहुत से अल्फाज को बदलने की कोशिशें की गई, कुरान के अहकाम में तहरीफ करने की नापाक जसारत की गई है। मगर आप ये जहन नशीन कर लें, कुरान करीम में अब तक के ना तो बदलाव और तहरीफ का कोई इम्कान हुआ है, न सुबह क़यामत तक हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ ये है, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हम ही कुरान को नाजिल करने वाले हैं, हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। अगर कुरान की हिफाजत इंसान के जिम्मा होती तो उसमें तारीफ हो सकती थी, बदलाव हो सकता था, तब्दीली हो सकती थी, लेकिन कुरान की हिफाजत का जिम्मा रब ने अपनी जात पर लिया है, इसलिए उसमें कोई तहरीफ नहीं हो सकती। कुरान अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह के हबीब के बारगाह में नाजिल हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही बेआइन ही उसी तरह कुरान हमारे आपके हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारे और आपके माबैन मौजूद है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आज अभी थोड़ी देर के बाद आप मिंबर शरीफ के हवाले से बच्चों के सर पर दस्तार हिफ्जुल कुरान देखेंगे और हिफ्जुल कुरान के इस हसीन मौके पर आप तशरीफ लाए हैं। इसमें मकबूलियत का वक्त भी होता है, दस्तार बंदी अमल में आएगी। आप देखें, आप ये याद रखें, आज पूरी दुनिया मिलकर कुरान को दुनिया से मिटाने की नापाक कोशिश करती है। कहीं कुरान को चलाने की कोशिश की जाती है, कहीं कुरान को ख़त्म करने की बात की जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ। ये सिर्फ जलसों ही के जरिए नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज है, पूरे जमात अहले सुन्नत की जानिब से, ये आला हजरत के गुलामों की जानिब से पूरी दुनिया को चैलेंज इस बात का है कि पूरी दुनिया मिलकर जितना किताबी शक्ल में कुरान है, उस कुरान को अगर एक कमरे में बंद कर दे, कहीं पर छुपा दे, कहीं पर पोशीदा कर दे, कहीं उसे ढक के रख दे और ये कोशिश करे कि दुनिया में जितने उलमा, जितने मुसलमान हैं, उन्हें कुरान न मिलने दिया जाए, उन्हें कुरान न दिया जाए तो वो कुरान से महरूम हो जाएंगे। मगर सच्ची बात यह है, मगर हकीकी बात यह है, पूरी दुनिया तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर सुन्नत अमीर हमजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं जमात अहले सुन्नत का एक उभरता हुआ लहजा, जिसे बड़ी कद्र की निगाहों से मुसलमानान अहले सुन्नत के जमात में अमीर हमजा मद्दाह हबीब दावर के पैकर में देखा जाता है। वो आज आपके गांव में, आपकी बस्ती में और आपके इस जलसे में पैकर में मौजूद है। अभी हमारे बाद उनसे अच्छा लहजा, उनसे उनका खूबसूरत कलाम आप हज़रात समाअत फरमाकर महजूज होंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था, रब्बे काबा ने कुरान जैसा एजाज़ अता फरमाया। कुरान की खासियत और कुरान का एजाज़ ये देखिए, पूरी दुनिया मिलकर कुरान को मिटाना चाहती है, मगर कुरान अपने उसी हक़ानियत और सदाकत के साथ दुनिया में आज भी मौजूद है। मैं पूरी दुनिया को चैलेंज ये कर रहा था, पूरी दुनिया मिलकर जो किताबी कुरान है उसे एक कमरे में बंद कर दे, एक जगह छुपा कर रखते और उनकी ये कोशिश हो कि हम मुसलमानों को कुरान नहीं देंगे, उन्हें कुरान की तालीम से महरूम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये मदरसे, ये इदारे इस बात के लिए अभी जिम्मेदार हैं कि अपनी गोद से बच्चे हाफिज कुरान पैदा कर लेते हैं। हम किताबी कुरान को ताक में छुपा दे, किसी कमरे में बंद कर दे, मगर हम अपने बच्चे को खड़ा कर से फिर से कुरान तैयार कर लेंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। हजरात में बड़ी तेजी के साथ आपके दरमियान से रुखसत होने वाला हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, उस रसूल गिरामी वक़ार अलैहि तहियतो वस्सना की ज़ात बाबत बरकात से आप जितनी भी मोहब्बत करें कम है, नबी की ज़ात बाबरकात से आप जितनी भी उल्फत और लगन रखें कम है। इसलिए कि मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम के हवाले से आपने उलमा के जरिए सुना है, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। बस ये आखिरी बात आपके सामने रखता हूँ, अल्लाह के हबीब के जब विलादत बासआदत हुई, नबी दुनिया में तशरीफ लाए, तो दुनिया में नबी ने कदम रखते ही अपनी उम्मत को याद फरमाया था। आपने अगर ये बात सुनी है तो एक बार पूरा मजमा दिल की गहराई से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने दुनिया में कदम रखा, सरकार पैदा हुए, आपने रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद किया था। इस हदीस पाक से एक वजाहत आपको करके एक मिनट में आगे बढ़ रहा हूँ। आज दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये ऐलान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत मिली है, 40 साल के बाद नबी बनाया गया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, नबी के पैदाइशी नबी होने पर कुरान की आयतें भी दलालत
दलालत करती है, कुरान की आयतें भी शाहिद है और ये हदीस पाक खुद भी दलालत करती है। सरकार मदीना पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की विलादत हुई तो मेरे आका की जुबान पर यही जुमला जारी था, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरे उम्मती को हिबा फरमा दे, मौला मेरे उम्मती को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरे उम्मती को बख्श दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार मदीना अभी पैदा हुए हैं, उम्मती के बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रसूल कायनात को 40 साल के बाद नबूवत मिली है तो पैदा होते हैं उम्मत के मग़फ़िरत की दुआ कौन कर रहा है? उम्मती के बख्शिश की दुआ वही करेगा जो अपने वक्त का नबी होगा। दूसरी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व फी रिवायतिही कुन्तु नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वल जसद। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मैं उस वक्त नबी था जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था, मैं उस वक्त नबी था जब आदम जिस्म रूह का सफर तय कर रहे थे। ये अल्लाह के हबीब का फरमान है। फरमान मुस्तफ़ा इतना मुस्तहकम है कि जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, निज़ाम दुनिया बदल सकता है, नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता है। कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा राहत रज़ा बरकाती, नारे तकबीर। मेरे भाई मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम दुनिया में तशरीफ लाए, अपने उम्मती से नबी इतना प्यार फरमाते हैं, दुनिया में कदम रखा, उम्मती के बख्शिश की दुआ मांगी। मेरे आका बचपन में उम्मती को याद फरमाते रहे। अल्लाह के हबीब ने अपनी 40 साल जिंदगी दुनिया के सामने पेश फरमा सलाम को कब्र नूर में उतारने के लिए, जो सहाबा आपको कब्र में उतारने के लिए उतरे थे कब्र में, उन सहाबा का बयान है। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने आखिरी दीदार के लिए जब नबी के चेहरे से पर्दे को हटाया, आप तवज्जो हमारी तरफ दे, बस मैं 2-4-5 मिनट का मेहमान हो, उसके बाद आपसे रुखसत होता हो। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, मैंने आखिरी जियारत के लिए नबी के चेहरे से पर्दा हटाया, हमने देखा क्या कि नबी के होंठ हरकत कर रहे हैं, नबी के होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से सफर आखिरत फरमा रहे हैं। हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते, मैंने कान करीब कर दिया तो करीने से मैंने महसूस किया मेरे आका दुनिया से कब्र अनवर में तशरीफ ले गए। फरमाते जा रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरे उम्मती को हिबा फरमा दे, मौला मेरे उम्मती की बख्शिश फरमा दे। मेरी कौम के लोगों में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जिस नबी की उम्मत में आप हैं, वो नबी आपसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हो, वो नबी आपसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे। जिस नबी ने माँ की ताजीम का सबक दिया है, वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे। जिस नबी ने इस चांद के 2 टुकड़े कर दिया है, वो नबी हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नबी हमसे इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि सारी दुनिया तो सो रही है, पूरी कायनात आराम कर रही है, मगर अल्लाह का हबीब हमारा आका अल्लाह की बारगाह में फरियाद करके आंखों से आंसू सामनो भादों की तरह बरस रहे हैं। नबी के रुखसार भीग गए, नबी के दाढ़ी शरीफ के बाल तर हो गए, उम्मती का गम नबी को बेचैन कर रहा है। अल्लाह अल्लाह एक दिन का वाक़या है, मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम का आज बहुत बेचैन व बेकरार है। आज मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम बहुत मुज़महिल खातिर है। मेरे आका अपनी ज़बान से सिर्फ एक दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। उम्मत के मग़फ़िरत के हवाले से, उम्मत के हवाले से नबी के मुख्तलिफ दुआएं हैं, उम्मत के हवाले से नबी के मुख्तलिफ अक़वाल और नबी के मुख्तलिफ अल्फाज है, मगर आप ये याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये जुमला आपके दिल की सतह ज़हन पर लिखने की कोशिश करता हो, दिल की तख्ती पर इस अल्फाज को चिस्पा करके मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा। अल्लाह के हबीब दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। इसका मतलब है, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। सरकार ये कहते जा रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, नबी अश्कबार है, नबी की आंखें बरसती जा रही है। सरकार जबान से फरमाते जाते हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, उम्मती उम्मती का अल्फाज नबी के जबान पर विरद जबान है और आंखों से आंसुओं की लड़ी लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम की बारगाह में जब हमने आलम तसव्वुर में ये अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आपने उम्मत के बख्शिश के हवाले से हमेशा तरह तरह के अल्फाज से दुआ फरमाई है, या रसूल अल्लाह, मगर आज इतना मुख्तसर सा जुमला आपकी ज़बान से अदा हो रहा था, सिर्फ अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती का जुमला आपकी
जबान से अदा हो रहा। या रसूल अल्लाह, इसमें हिकमत क्या है? मेरे भाई जरा सुनिएगा, ये बात जरा सा आसान करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी बेटी है, उस शादी होकर अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद में खुदा ने उसकी गोद आबाद कर दिया, वो माँ बनी है। माँ बनने के बाद उसके बेटे को जरा सा बुखार आता है, थोड़ी सी मुख्तसर सी बीमारी है, थोड़ी सी बीमारी लाहिक हुई तो बेटी अपने बच्चे को सीने से लगाती है। लगाने के बाद डॉक्टर के पास जाती है। जाने के बाद में तफसील से उसके बारे में बताती है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को खांसी आती है, मेरे बच्चे को बुखार आता है, मेरे बच्चे को निमोनिया है, मेरे बच्चे को दस्त आता है, मेरे बच्चे को फला तकलीफ है, मेरे बच्चे को फला तकलीफ है, मेरे बच्चे को फला तकलीफ है। माँ तफसील से अपने बच्चे की कैफियत बयान करती है। कब? जब बच्चे की हालत थोड़ा सा कम बीमार है, जब बच्चा बहुत ज्यादा सीरियसली मामलात में नहीं है, जब बच्चा बहुत थोड़ी सी बीमारी का शिकार है, तब माँ डॉक्टर को सारी तफसील समझाती है। लेकिन खुदा न खास्ता वही बेटा बड़ी सीरियस मंजिल में पहुंच गया, बड़ी नाजुक हालत में है। ऐसा लगता है बेटे की एक सांस चल रही है, थोड़ी देर के बाद में ये हमें दागे मफारिकत दे जाएगा। ऐसा लगता है अब मेरा बेटा मेरी गोद में आखिरी हिचकी लेकर हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाएगा। जब माँ अपने बच्चे को इस हालत में देखती है, माँ अपने लाल को सीने से लगाकर भाग पड़ती है। माँ अपने घर से निकली, बच्चे को सीने से चिमटाए भागी चली जा रही है, डॉक्टर के दरवाजे की तरफ चली जा रही है, डॉक्टर के दरवाजे की तरफ चली जा रही है। तवज्जो से सुनिएगा, मैं जहां आपको लाना चाह रहा था आप बिल्कुल वहां पहुंच चुके हैं। वो औरत भागती चली जा रही है, बेटा उसकी गोद में है, माँ की सांस बड़ी तेज चल रही है। माँ के सर से दुपट्टा सरक गया, मगर एहसास ना हुआ, इसलिए कि बेटे के गम में वो इतना खोई हुई है, बेटे का गम इतना ज्यादा लाहिक है कि सर से दुपट्टा उतर गया। अब उसे एहसास तक नहीं हुआ, उसे पता तक के नहीं चला। अल्लाहू अकबर, बिला तअम्मुल आप मुझे कहने दीजिए। वो औरत अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के दरवाजे तक गई। जाने के बाद डॉक्टर के टेबल पर उसके बेंच उसके सामने मेज पर लेटा दिया। देख रही है बेटे की आखिरी सांस चल रही है, एक सांस ले रहा है। बच्चा अब दम तोड़ देगा तब दम तोड़ देगा, अब सांस छोड़ देगा तब सांस छोड़ देगा। माँ अपने बेटे के गम में इतना बेचैन और बेकरार है कि माँ अपने बच्चे के बारे में डॉक्टर से तफसील नहीं बयान करती है। मेरे बच्चे की पेट में तकलीफ है, या सर में तकलीफ है, या पेट में तकलीफ है, या आंख में तकलीफ है, या पेट खराब है, या बुखार ज्यादा है, निमोनिया हो गया है, या कॉलेरा हो गया है। माँ तफसील नहीं बयान करती है। माँ मारे गम के डॉक्टर से कहती, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर बचा लो मेरे बच्चे को। जबकि दुनिया जानती है जिंदगी का ज़ामिन खुदा है, मौत का ज़ामिन भी खुदा है। खुदा जिसे जिंदगी देता है दुनिया उसे मार नहीं सकती, और खुदा जिसे मौत दे देता है दुनिया उसे बचा नहीं सकती। मगर माँ है बेटे की मोहब्बत में इतना पागल है, अर्ज करती है डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा, डॉक्टर मेरा बच्चा। गोया कि माँ अपने बच्चे के मोहब्बत में बेयाकुल है। माँ अपने दिल को तसल्ली नहीं दे पा रही है, अपने ज़हन फिक्र को समझाने के हद तक मकदूर कोशिश करती है, मगर उसकी सारी ताकतें जवाब दे देती है। बिला तामुल एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है। नबी बयान फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करता हूँ जितना 70 माएँ अपनी औलाद से मोहब्बत करती है, उससे कहीं ज्यादा मैं अपनी उम्मत से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के हबीब हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाते हैं। अब मैं अर्ज करता हूँ मेरे आका का ये जुमला फरमाना, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती। ऐसा क्यों है? मेरे आका हमारी जिंदगियां देख रहे हैं, नबी हमारा बचपन देख रहे हैं, नबी हमारी जवानी देख रहे हैं, नबी हमारा बुढ़ापा देख रहे हैं, नबी हमारा बेअमल होना देख रहे हैं, नबी हमारा चेहरा देख रहे हैं, नबी हमारा कबीला देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी देख रहे हैं, हमारी तहजीब देख रहे हैं, हमारा तमद्दुन देख रहे हैं, हमारा नमाजों का छोड़ना देख रहे हैं, हमारा बेअमल होना देख रहे हैं, शराब नोशी के अड्डों पर जाना हमारा है, इसे हमारे नबी देख रहे हैं। हम जुआ के अड्डों पर जाते हैं, नबी इसे देख रहे हैं। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, दुनिया के तमाम गुनाहों की महफिलों में हम मुसलमान आगे आगे नजर आते हैं। मुस्तफ़ा की नजर से हमारी जिंदगी का एक भी लम्हा पोशीदा नहीं। हमारा गुनाहों में जाना, गुनाहों के महफिलों की जीनत बनना, गुनाहों का इर्तिकाब करना नबी की नजरों से पोशीदा नहीं है। नबी जब हमारा शराब पीना देख रहे हैं, नबी हमारा जुआ खेलना देख रहे हैं, नबी हमारे अय्याशी करना देख रहे हैं, नबी हमारी चोरी देख रहे हैं, नबी हमारा नापाक रहना देख रहे हैं, नबी माँ के शान में गुस्ताखी करना देख रहे हैं, बाप की बेअदबी करना देख रहे हैं, भाई का हक मारना देख रहे हैं, बीवी को सताना देख रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ देना देख रहे हैं, पूरी कौम के साथ नाइंसाफी, बड़ों की ताजीम ना करना देख रहे हैं, छोटों पर शफकत ना करना देख रहे हैं। मेरे आका की निगाहों में हमारी मुकम्मल जिंदगी है,
तो नबी जो इतना बेचैन है वो अपने उम्मती के गम में मेरे आका इस तरह अश्कबार है कि जिस उम्मत से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, कि जिस उम्मत के लिए मैंने नींद रात की नींदें कुर्बान की है, जिस उम्मत की खातिर मैंने दिन का सुकून कुर्बान किया, मैंने इस उम्मत की खातिर जो तमाम मुसीबतें मशक्क़तें झेली है, वो मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत जहन्नम में चलेगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत को सभी कुछ तो गवारा है, मगर नबी की उम्मत जहन्नम में चली जाए ये गवारा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आए हो, दस्तारबंदी के जलसे में आए हो, यहाँ हिफ्ज़ कुरान की सनद और उसके दस्तार से बच्चों को नवाजा जाएगा। आपको ये ज़हन फिक्र दे रहा हो, आपको ये पैगाम दे रहा हो कि मेरे भाई इस जलसे में आने के बाद में अपने दिल की दुनिया में तब्दीली पैदा करने की कोशिश करो। आप यहाँ से जब उठो, जब यहाँ से निकल कर जाओ, अपने घरों को, अपने बस्तियों, अपनी आबादी के कर रुख करो तो ये ठान करके जाओ, अगर बेनमाजी बन के आए थे, यहाँ से नमाज पढ़ने गाना पढ़ने का अहद पैमान लेकर जाओ। अगर आप शराब पीते या जुआ या नशा के आदी बन के आए थे, आपसे गुजारिश करता हूँ, तुम्हारा शराब पीना, तुम्हारा नशा करना, तुम्हारा बियर पीना, ये नशे का इंजेक्शन लेना मुस्तफ़ा की निगाहों से पोशीदा नहीं है। अगर अपनी इस हालत को नहीं बदलोगे, इस रविश को तब्दील नहीं किया, कल रोज़े महशर अगर मुस्तफ़ा ने सवाल कर लिया तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। बेअमली का दिल लाए हो, यहाँ से अमल का इरादा करके जाओ, ये जलसा भी कामयाब होगा, आपका आना भी कामयाब होगा, हमारा तकरीर करना भी कामयाब होगा। मुसलमानों, आप इश्क़ नबी में जियो, मोहब्बत रसूल में जिंदा रहो, नबी के मोहब्बत में जिंदा रहो, नबी के मोहब्बत में मर जाने की दुआएं मांगो। बस आखिरी बात 1 मिनट की कह के आपसे गुजरना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अभी आप देखेंगे आज यहाँ आपके गाँव के बच्चों के सर पर दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान रखा जाएगा। इसका बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़ा रोल है अजीज़म हाफिज़ कारी मोहम्मद इंतज़ार रज़ा सल्लल्लाहु का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ आपके बच्चों को जहाँ नाज़रा कुरान करीम करवाया है, वही कुरान करीम को हिफ्ज़ भी करवाया है। आप जो है उनके बाजू को मजबूत करो और उनसे मसलक आला हज़रत का काम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारी कौम ये चाहती है, हमारा मजहब बाकी रहे, हमारा मसलक बाकी रहे, हमारा दीन बाकी रहे, हमारे मजहब की हिफाजत होती रहे। आप उलमा के बाजू को मजबूत करो, उलमा के करीब हो जाओ, इनका एहतराम करो, इनकी ताज़ीम करो, इनसे मोहब्बत करो। बस एक बात आकर कह के गुजर रहा हो, आज से 20 साल पहले के, 25-30 साल पहले की तारीख पलट कर देखो, इतनी कसरत से जलसे नहीं होते थे। उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, आज से 30 साल पहले की तारीख पलट करके आप देखिए, इतनी कसरत से जलसे नहीं होते थे। तब वहाबी कम थे, आज जलसे बहुत हो रहे हैं, वहाबी बढ़ रहा है। मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ, मैं ढकी चुपी या खामोशी के साथ बातें करने वाला खतीब नहीं हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ आपके गांव में नहीं बल्कि तमामी मकामात पर मैं बड़ी हक्कानियत के साथ वजाहत की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों, तुम थे क्या, आज हो क्या गए हो। आज से 30-35 साल 40 साल पहले के हालात का जायजा लेकर देखें। जब मदरसे कम थे तो वहाबी कम थे, मस्जिदें कम थी, वहाबी कम थे, ये दीनी जलसे कम होते थे तो मदरसे वहाबी कम थे। लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है, मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, वहाबियत बढ़ रही है, मस्जिदें बढ़ती जा रही है, वहाबियत बढ़ रही है, ये जलसे बढ़ रहे हैं, वहाबियत बढ़ रही है, गैर मुक़ल्लिदियत बढ़ रही है, बददीनी बढ़ रही है, गुमराही बढ़ रही है। बड़ी कीमती बात अर्ज करता हूँ और जोश में नहीं बोलता हूँ, पूरे होश और हवास में गुफ्तगू करता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे समाज से, पूरी कौम से मैं इस बात के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जब उलमा कम थे तो वहाबियत कम थी, आज उलमा ज्यादा है, वहाबियत बढ़ रही है। जब मस्जिदें कम थी तो वहाबियत कम थी, बददीनी गुमराही कम थी, आज मस्जिदें बढ़ रही है तो गुमराही बढ़ रही है। जब मदरसे कम थे तो गुमराही कम थी, आज मदरसे बढ़ रहे हैं तो गुमराही बढ़ रही है। आज जलसे हो रहे, जलसे कसरत से होते हैं। जब जलसे कम थे, जब कॉन्फ्रेंसें कम थी, दीनी मजलिसें कम थी तो वहाबियत और देवबंदियत, गैर मुक़ल्लिदियत बहुत कम शाज़ो नादिर के तौर पर पाई जाती थी। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इक्का दुक्का कोई वहाबी देवबंदी नजर आता था, मगर मदरसे बढ़ रहे हैं, वहाबियत बढ़ रही है, मस्जिदें बढ़ रही है, वहाबियत बढ़ रही है, जलसे बढ़ रहे हैं, कादियानियत बढ़ रही है,
ہے, غیر مقلدیت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی ذہن کو اس پر غور کرنے کے لیے مجبور کیا؟ اگر نہیں تو سنو, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مسجدیں کم تھی تو وہاں بھی کم تھے, مدرسے کم تھے وہاں بھی کم تھے, جب دیوبندی جب جو ہے دینی محفلیں کم تھی وہاں بھی کم تھے. آج یہ مسجدیں اور مدرسے اور دینی درسگاہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے, وہابیت بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہابیوں سے رشتہ جوڑنا شروع کر دیا ہے, وہابیوں سے ہمارا تعلق قائم ہے. اگر ہم وہابی سے تعلق توڑ لیں تو وہابیت کا جنم. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضرت مفتی لیاقت حسین صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عظیم خطیب کا شاندار جاندار خصوصی خطاب سماعت کر کے محظوظ ہوں گے, مگر یہ پیغام آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جب تک کہ ہم وہابیوں, دیوبندیوں, غیر مقلدیوں سے رشتہ نہیں کرتے تھے ان کی تعداد کم تھی. ہم نے ان سے رشتہ داریاں شروع کر دی, ان کی تعداد بڑھنے لگی. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گمراہی کا سارا فتنہ ختم ہو جائے, آپ ان سے قطع تعلق کر لیں, ان سے رشتہ داریاں کرنے سے آپ الگ تھلگ ہو جائے. انشاءاللہ اس گمراہ فرقے کا وجود جڑ سے مٹ جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا تعالیٰ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو, پھر ہماری قوم کے, ہمارے تمام بھائی بہن, بچے, بوڑھے, جوان, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے بولنے میں لفظاً مانن قصداً صحباً جو بھی خطائیں سرزد ہوئی ہوں ان سب کو اپنے حبیب کے صدقہ و فعل میں معاف فرما. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوب کی سیر چمن, پھول چنے شاد رہے, باغ باں جاتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. مذہب اسلام زندہ باد زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد پائندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.